Hello students, today I am going to teach about plant disease symptoms. First, I would like to explain what is a plant disease or what are the plant diseases. Plant disease is any physiological disorder or structural abnormality that is harmful for the plant itself or its part or it damages its production that reduces its economical value. So what are the plant diseases? The plant diseases are any physiological disorder or it is a structural abnormality that is harmful to the plant or its part or its products, which as a result reduces its economic value. And the cause of this plant diseases may be biotic or abiotic. Biotic means any organism may be responsible for this plant diseases, and there may be any organism, like it may be fungus, it may be bacteria, it may be virus, it may be nematode, or any other organism behind these diseases. And there are certain abiotic reasons like certain nutrient deficiency, water deficiency, oxygen deficiency. These are different kind of abiotic factors which are also responsible for the plant diseases. So in this video we are going to discuss about, or we are going to understand about different kind of the plant disease symptoms. And these disease symptoms may be due to nature, structure and appearance of visible pathogens. Sometimes pathogens remain present on the surface of host plant, or their spores remain visible on the host surface. So they produces different kind of symptoms. Sometimes symptoms are produced due to certain morphological or anatomical disorders produced by the pathogens. So in this video we are going to study about the different kind of disease symptoms produced by the pathogen. So first we will see about the symptoms due to nature, structure and appearance of visible pathogen. These are of different kind like mildews, rust, स्मट्स, स्कैब्स एंड फ्रूटिंग बॉडीज. कभी कभी जो पैथोजेंस होते हैं वो होस्ट के सरफेस पे, लाइक उनके स्टेम एपिडर्मिस पे, लीफ एपिडर्मिस पे, ऊपरी सतह पे प्रेजेंट होते हैं, और वो कुछ उनके विजिबल उनके कुछ मार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. इट इज शोइंग द, लेट मी शो यू. Let me show you. This is showing the downy mildew disease. What is a mildew? In the mildew, there are certain kind of structure that may be different in shape, that may be spherical in outline or rough in outline. It may be brownish, blackish, or any kind of structure which are visible on the host surface. आप ये देखिए इसमें, ये this leaf is showing the डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम. डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम में क्या होता है, बिल्कुल कॉटनी ग्रोथ होता है, एंड समटाइम्स इट इज ब्राउनिश, समटाइम्स इट इज येलोइश और डार्क इन कलर, और इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं. इसमें थोड़ा सा कुछ कॉटनी ग्रोथ होता है और येलोइश और ब्राउनिश स्ट्रक्चर दिखते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डाउनी मिल्ड्यू. इन द पाउडरी मिल्ड्यू व्हाट वी सी अ पाउडरी मास. आप जैसा कि देख रहे हैं, बिल्कुल पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स आर सीन ऑन द surface of host. So this kind of symptom is known as a powdery mildew. So this is a downy mildew and this is a powdery mildew. And what happens in a rust? In the rust there occurs formation of small pustules. आप जैसे दिख रहे हैं, ये कुछ तरीके के छोटे छोटे बिल्कुल पिंपल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिंपल स्किन्स पे होते हैं. ये बिल्कुल रस्ट का जो सिम्टम होता है. These are very small pustules which are visible on the host surface, and these pustules may be of different color. They may be yellowish, they may be brownish, they may be blackish. There are different kind of rust, and depending upon its color there are different kind of rust diseases, like black rust disease, yellow rust, white rust. Different kind of rust diseases are available there.
And this picture is showing the symptom of स्मट्स. स्मट में कैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये सूटी चारकोल लाइक, ये बिल्कुल चारकोल के तरह के पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स होते हैं. आप बिल्कुल देख रही हैं ये ब्लैकिश हो गया है, एक कॉर्न का सीड है जो कि बिल्कुल ब्लैकिश दिख रहा है डायग्राम में. सो इन द smut diseases, what happens, the black charcoal like powdery mass of spores are seen. So these are the four different symptoms of diseases which is due to the appearance of pathogen on the host surface. Next, I will show you about the scab. Scabs, what are the scab? Scabs are some rough structure, rough crustaceous, crust like structure. आप जैसा देख सकते हैं ये बिल्कुल इनका rough outline होता है और crustaceous growth होता है जो कि host epidermis के ये host surface में ये embedded है और ये बिल्कुल इसका जो rough outline है ये host epidermis के overgrowth के कारण हो रहा है. इसका बिल्कुल आप देख रहे हो rough texture है और these are known as a scabs. एंड दिस आर द फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडी ये मोस्टली जो फंगल डिजीजेज होती हैं लाइक अगेरिकस जो मशरूम जैसा कि आप जानते हैं ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है. तो ये समटाइम्स ये फंगल डिजीजेज में इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज दिखती हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ पैथोजन. जब पैथोजन होस्ट के सरफेस पे दिखता है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसके दिखते हैं या उसके स्पोर्स अपीयर होते हैं. सो दीज आर नोन एज अ scabs. These are known as different visible symptoms, and these visible example of the visible symptoms are mildews, rust, smuts, scabs, fruiting bodies, and etc. And what are the anatomical and morphological symptoms on the host? सो ये तो आपने देखा कि जो भी पैथोजन के अपीयरेंस के कारण सिम्टम था. एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? देर आर द टू एग्जाम्पल. वन इज निक्रोसिस एंड सेकेंड वन इज द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया. What is necrosis? Necrosis is the death of cell, tissue and organ of the host due to parasitic infection. जैसा कि अभी आपने देखा पहले फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि जब कभी कोई पैथोजन होस्ट को अटैक करता है तो पैथोजन के डिफरेंट स्पोर्स की वजह से कुछ विजिबल सिम्टम अपीयर होते हैं उसकी ग्रोथ के कारण. यहाँ पे निक्रोसिस ये जो सिम्टम है यहाँ पे क्या होता है, होस्ट पैरासाइट के अटैक के कारण जब पैरासाइट होस्ट प्लांट को अटैक करता है तो होस्ट प्लांट के डिफरेंट सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन का डैमेज हो जाता है. दे डाई ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन and they produce different kind of symptoms, and these symptoms are what? Sometimes they are in the form of spots. कभी कभी वहाँ पे spot दिखता है. Sometimes we see strips or streaks. Sometimes we see cancerous growth. Sometimes we see blight, and sometimes there are symptom like damping off of seedling. And second abnormality produced by the attack of pathogen is the hypertrophy and hyperplasia. What is a hypertrophy? Hypertrophy is the abnormal growth in particular part of the plant or whole plant due to enlargement of affected cells, while hyperplasia is the abnormal growth in particular part of the plant ड्यू टू इंक्रीज सेल डिवीजन. जब कोई पैथोजन किसी होस्ट को अटैक करता है तो कभी कभी होस्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और उसकी साइज बहुत बढ़ जाती है. और वो साइज क्यों बढ़ती है? ड्यू टू समटाइम्स ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड सेल्स. जो सेल्स अफेक्टेड होती हैं पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण उनकी साइज बहुत बढ़ जाती है. एंड सच काइंड ऑफ सिम्टम्स आर नोन एज अ हाइपरट्रॉफी. सेल की साइज बढ़ जाती है. So such symptoms are known as a hypertrophy. And sometimes the affected cell starts dividing very fast, and such kind of symptom is known as a hyperplasia. So I'm going to describe about the different kind of necrotic symptom and different kind of hypertrophic symptoms. Okay, so I will show you in the next slide. You can see here this is the spots. ये बिल्कुल सर्कुलर से स्पॉट्स हैं
कंसेंट्रिक स्पॉट जो कि पैथोजन के अटैक के कारण हुए हैं। यू कैन सी हियर ब्राउनिश सर्कुलर स्पॉट्स, और ये बिल्कुल ये इसके किनारे के जो रीजन है वो बिल्कुल येलोइश है। तो ये ब्राउनिश इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो सेल है ये बिल्कुल डेड हो गया इन्फेक्शन के कारण, दैट्स वाई ये वी कैन सी सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक दूसरा स्पॉट होता है तार स्पॉट। तार स्पॉट में क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक कोलतार की तरीके से स्पॉट्स हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है तार स्पॉट। एक स्पॉट में एक एंथ्राकोनोज सिम्टम होता है। एंथ्राकोनोज सिम्टम में क्या होता है, जो लीफ का इंटरनल सरफेस होता है उसमें वेन के एरिया में पूरी इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा येलोइश, और वेन के किनारे ये पूरे डैमेज हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं एंथ्राकोनोज। एज यू कैन सी हियर द इनर सरफेस ऑफ द लीफ, द एरिया सराउंडिंग वेन्स हैज बिकम चेंज्ड इन कलर। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और यहाँ पे ये बिल्कुल टिश्यू डैमेज हो जाती है। एंड यू कैन सी हियर द स्ट्रिप्स और स्ट्रिक। आप ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्राउनिश सी लाइन जैसे छोटे छोटे वर्टिकल स्पॉट्स से बन जा रहे हैं, जिनको स्ट्रिप्स और स्ट्रिक कहते हैं। ये भी पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण होता है। एंड कैंकर, इन द कैंकर देर डेवलप सर्टेन रफ स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल कुछ रफ सा स्ट्रक्चर, जैसा कि आप स्कैब के केस में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि कुछ रफ क्रस्टेशियस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ये लेमन के साइट्रस कैंकर जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, ये मेनली उसका एग्जाम्पल है, ये आपके सिलेबस में भी है। और ये कैंकर में क्या होता है, ये बिल्कुल रफ क्रस्टेशियस स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। और ये स्कैब और कैंकर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो स्कैब होता है वो केवल होस्ट के एपिडर्मिस तक ही होता है, और जो कैंकरस ग्रोथ होती है ये और अंदर तक वैस्कुलर टिश्यू तक ये डैमेज करती है। So this is what? This is canker. This is also a kind of necrotic symptom due to death of the host tissue by attack of pathogen. Now it's a blight. ब्लाइट में क्या होता है, ब्लाइट इज अ काइंड ऑफ बर्न्ड अपीयरेंस। बिल्कुल जला हुआ सा जो होस्ट होता है वो बिल्कुल जल सा जाता है, एंड इट लुक लाइक बर्न। डेथ के कारण टिश्यूज के ये बिल्कुल जले हुए झुलसे हुए से दिखते हैं, इसमें ब्लाइट है। तो बहुत तरीके के ब्लाइट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देयर आर मेनी मोर ब्लाइट diseases that occurs due to mainly fungal infection। तो आप ये बिल्कुल देखिए जली हुई सी पत्तियां दिख रही हैं, दिस इज अ सिम्टम ऑफ ब्लाइट। एंड दिस इज अ डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि जो रूट का जो निचला सरफेस है ये बिल्कुल वीक हो जाता है, और बिल्कुल जो स्टेम होता है ये सॉइल से डीरूट हो जाता है और ये गिर जाता है, इसलिए इसका नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। I think now you must be clear about different kind of necrotic symptoms. These are spot, tar spot, anthracnose, strips or streak, canker, blight, and damping off of seedlings. Now hypertrophic symptoms. Hypertrophic symptoms, as I told you, this is due to increase in the size of cells। ठीक है, जब सेल की साइज बढ़ जाती है तो उसमें डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। समटाइम्स देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ गॉल, समटाइम्स देयर अकर कर्लिंग, and sometimes there occur a formation of certain abnormal growth of due to abnormal growth of stem or abnormal branching, there occur formation of witch's broom like symptom। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। गाल है, ये जो गाल और वार्ड डिजीज बोलते हैं इसको। तो जब क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी के कारण जब छोटे छोटे ये हाइपरट्रॉफिक सिम्टम्स होते हैं, ऐसा आप देख रहे हैं ना इसमें पोटैटो के सरफेस के ऊपर, यू कैन सी हियर तो स्मॉल साइज गॉल आर फॉर्म्ड। एंड जब ये छोटे साइज के होते हैं तो इन्हें वार्ट और ट्यूबरकल कहते हैं, और लार्ज साइज को नॉट और एक्सक्रिशंस बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सेल की साइज जो यहाँ पे सेल है वो एक्सेसिव ग्रोथ के कारण, सेल की साइज बढ़ने के कारण बिल्कुल ये गाल लाइक स्ट्रक्चर, वार्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड कर्ल का सिम्टम, ये लीफ कर्ल और पाया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें ओवर ग्रोथ के कारण लीफ बिल्कुल कर्ल सा हो जाता है। कर्ल क्यों होता है, क्योंकि कुछ कुछ सेल की साइज बहुत ज्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाती है। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ कर्लिंग। और विचेस ब्रूम में क्या हुआ है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ब्रांचिंग होती है, एंड इंस्टेड ऑफ
हॉरिजेंटली इट इज शोइंग वर्टिकल ग्रोथ। तो ये बिल्कुल इसको विचेस ब्रूम नाम दिया गया है क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल ब्रूम से रिजेंबल करता है, तो इसको नाम दिया गया है विचेस ब्रूम। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज सिम्टम्स ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजन। तो आपने देखा कि हमने 3 तरीके के डिजीज सिम्टम को देखा। एक में तो पैथोजन बिल्कुल अपीयर होता है होस्ट के सरफेस पे, और दूसरे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी होती है, दैट मे बी आइदर ड्यू टू डेथ और डेथ ऑफ द होस्ट टिश्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए नेक्रोसिस, एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू hypertrophy or hypoplasia, means that is by increase in the number of cells, or that may be due to increase in the size of cell. Now, classification of plant diseases. The plant diseases are of different kind, and there are different factors which classify the plant diseases into the different categories. First one is severity of infection and geographical distribution. Second one, nature of causal organism. Third one is the mode of primary infection and perpetuation. Fourth one is the extent of infection, and fifth one is the nature of host. So first, according to the severity of infection and geographical distribution, there are 4 kind of diseases: endemic diseases, epidemic diseases or epiphytotic diseases, sporadic diseases, and pandemic diseases. What are the endemic diseases? जब एंडेमिक डिजीजेस क्या होते हैं, जब कोई भी डिजीज किसी एक पार्टिकुलर एरिया में लोकलाइज्ड हो और वहीं पे वो एनुअली हर साल बार बार होता है, इस तरीके के डिजीज को एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे कि सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, जो वार्ड जो विच कॉजेज वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज एंडेमिक इन दार्जिलिंग। ये एंडेमिक डिजीज, जब ये जैसे ये एंडेमिक डिजीज ये पोटैटो की है, वार्ड डिजीजेज ऑफ पोटैटो, ये हमेशा दार्जिलिंग रीजन में ही है और ये और जगहों पे नहीं है। ये पेक्यूलियरली वहीं पे है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उस पैथोजन को फेवर कर रहा है ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके की डिजीज को एंडेमिक डिजीज कहते हैं, जब वो किसी एक पार्टिकुलर लोकल रीजन में या एक पार्टिकुलर एरिया में या पार्टिकुलर स्टेट में बार बार एवरी ईयर इट occurs, then it is known as a endemic disease. Second one is the epidemic diseases or epiphytotic disease. Epidemic diseases क्या होती हैं, जो कि डिफरेंट रीजन में जहाँ जहाँ पर वो क्रॉप पाई जाती हैं वो होती हैं। जैसे कि रस्ट डिजीज ऑफ सीरियल क्रॉप, जैसे कि वीट रस्ट है, ये जहाँ पे भी वीट की वेराइटीज ग्रो होती हैं, जहाँ भी वीट की का कल्टीवेशन होता है वहाँ पे इस तरीके के डिजीजेस होती हैं। तो इस तरीके की डिजीजेस को क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज। बट एंडेमिक और एपिडेमिक इन दोनों डिजीजेस में क्या अंतर होता है कि जो एंडेमिक डिजीजेस होती हैं उसमें जो एनवायरमेंट होता है वो पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस नहीं करता है, बट एपिडेमिक में क्या होता है कि पैथोजन को हमेशा सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, उसे बहुत लिमिटेड पीरियड का इन्वायरमेंट मिलता है सुटेबल ग्रोथ करने के लिए। तो और एंडेमिक डिजीजेस की तरह बिल्कुल से एपिडेमिक बिल्कुल एनुअली इस तरीके से नहीं होता है, बट वो जहाँ पे भी क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ पे ऑकरेंस वो पाया जाता है उसका। स्पोरेडिक डिजीज मीन्स द जब व्हेन एनी डिजीज ऑकर्स रैंडमली इन डिफरेंट प्लेसेस, सच काइंड ऑफ डिजीज नोन एज ए स्पोरेडिक डिजीज। इसका कोई एक डिफिनिट पैटर्न नहीं हर साल हो रहा है, स्पोरेडिकली मीन्स रैंडमली अगर हो रहा है तो सच काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज ए sporadic disease. For example, the Blau's disease of sugarcane. एंड व्हाट इज अ पेंडेमिक डिजीज? पेंडेमिक डिजीज का तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसा कि आपका कोरोना वायरस हो गया है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन और इट इज प्रेजेंट ओवरऑल वर्ल्ड, इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम, सच काइंड ऑफ डिजीज इज अ पेंडेमिक डिजीज। तो पेंडेमिक डिजीज का प्रॉब्लम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो वर्ल्ड वाइड ऑकरेंस का में था। इस तरीके के डिजीज को बोलते हैं पेंडेमिक डिजीजेस। Now there are different kind of diseases on the basis of nature of causal organism. Infectious or parasitic diseases and non-infectious or non-parasitic diseases. जब किसी पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण कोई डिजीज होती है तो ऐसी डिजीज को पैरासाइटिक डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। बट इफ इट अकर्स बाय एनी एबॉटिक एजेंट, लाइक किसी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, वाटर डिफिशियंसी के कारण कोई डिजीज हो रहा है, सच काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज अ
non-infectious or non-parasitic diseases. On the basis of mode of infection and its perpetuation, there are different kind of diseases like soil-borne diseases, seed-borne diseases and air-borne diseases. soil-borne diseases में क्या है कि जब किसी भी पैथोजन के स्पोर्स सॉइल में हो रहे हैं और वो फिर से क्रॉप को इन्फेक्ट कर दे रहे हैं जब भी क्रॉप उस सॉइल में ग्रो कर रहा है, such kind of disease is known as a soil borne diseases. और सीड borne diseases क्या है कि जब इस पैथोजन के स्पोर्स किसी सीड में प्रेजेंट हैं और वो सीड जब भी कल्टीवेशन के लिए यूज हो रही है और इन्फेक्शन हो रहा है, डिजीज हो रहा है, then such kind of disease is known as a seed borne disease. soil borne disease का क्या एग्जाम्पल है? fruit rot of cucurbits, stem rot of papaya. seed borne disease का एग्जाम्पल है smut disease of cereal crops by Astylegus. एंड व्हाट इज द एयरबोर्न डिजीज? जब कोई पैथोजन का स्पोर एयर में हो और एयर से ही उसका इन्फेक्शन हो तो सच काइंड ऑफ डिजीजेस आर नोन एज एयरबोर्न डिजीज. तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? जो स्पोर्स हैं वो एयर में है और वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, दस दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज नोन एज अ एयरबोर्न डिजीज. फॉर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीज? मिल्ड्यूज एंड रस्ट. On the basis of extent of infection, the disease is known as a localized disease or systemic disease. If the infection is present in any particular area, suppose किसी part of plant को infect कर रहा है, इस तरीके की disease को localized बोलते हैं. कभी कभी केवल leaf पे symptoms appear होते हैं, कभी किसी particular plant पे root को infect कर रहा है, किसी stem को कर रहा है या किसी particular part of plant को कर रहा है, localized region में है. Such kind of disease is known as a localized disease. But if the pathogen is present in overall present inside the host in its overall body, then such kind of disease is known as a systemic diseases. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ होस्ट. अब होस्ट कैसा है? अगर सीरियल क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सीरियल क्रॉप्स के डिजीजेस हुई, फॉरेस्ट क्रॉप्स को कर रहे हैं तो फॉरेस्ट क्रॉप डिजीज. वेजिटेबल किस तरीके के होस्ट क्या है, किस तरीके के क्रॉप से बिलोंग करता है, उस टाइप की फिर वो डिजीज होती है. I think you all must be clear about the what is plant diseases and what are the different kind of symptoms of disease, and what are what is the classification of plant diseases, how can we classify different plant diseases and how they are classified. And if you have any question, you can get back to me through my channel, or you can ask me on the WhatsApp link provided to you all. Thank you so much.